ایک یہ چاہیے، اس کی ہڈی گلے کی ہڈی چاہیے، اچھا، اور کیا چاہیے؟ اور ایک یہ ٹانگ کی ہڈی چاہیے۔ اس پروگرام کی تاریخ کے ایک عجیب چوراہے اور عجیب موڑ پر ہم کھڑے ہیں۔ میرے بالکل سامنے انسانی ہڈیاں موجود ہیں۔ میرے سامنے ایک لفافے کے اندر انسان کا دل اور اس کے دماغ کے مختلف حصے موجود ہیں۔ لاشیں بکھری ہیں سر پنجاب میں۔ آپ سے ہم نے بات کرنی سر، سر رسپانس آپ کا کوئی بندہ نہیں دے رہا ہے سر۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں سریام اور میں ہوں اقرار۔ وطن عزیز میں انسانی لاشوں کی توہین، مرنے کے بعد بھی انسانیت کی بے حرمتی اب کوئی نیا واقعہ نہیں رہی، لیکن آج سریام کے اس سب سے ہیبتناک ایپیسوڈ میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ کس طرح سے شہر لاہور میں، پاکستان کے دل میں انسانی لاشوں کی سریام خرید و فروخت جاری ہے۔ اور آج کے اس ایپیسوڈ میں انسانی لاش خریدنے سے لے کر سریام کی ٹیم نے انسانی دل، گردہ، پھیپھڑا اور دماغ بھی خریدا ہے۔ آج کا یہ پروگرام دل پر ہاتھ رکھ کر دیکھیے گا۔ موت برحق ہے اور مرنا ہر ایک کو ہے، آپ کو بھی اور مجھے بھی، لیکن ایک لمحے کے لیے سوچئے اور محسوس کیجئے کہ مرنے کے بعد آپ کی لاش کو بیچا جا رہا ہو، کالے علم کے لیے یا پھر کسی بھی اور مقصد کے لیے آپ کا دل، دماغ، جگر، پھیپھڑے اور آپ کی ہڈیاں مرنے کے بعد سرے بازار بیچی جا رہی ہوں، تو اپنی زندگی میں یہ سب سوچ کر آپ کو کیسا لگے گا؟ خدا نہ خواستہ صورتحال اور بھی ہیبتناک ہو سکتی ہے، کیونکہ اپنی توہین اور بے حرمتی تو شاید انسان برداشت کر لے، لیکن آپ کے پیارے ماں باپ، بہن بھائی، اولاد جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، خاکم بدہن ان کی لاشوں کو بیچا جائے، ان کے دل، گردے اور دماغ مرنے کے بعد نکال کر کالا جادو کرنے والوں کو فروخت کر دیے جائیں، تو پھر دل تھام کر سنیے، اس ملک میں ایسا ہو رہا ہے۔ انسانی لاشیں، انسانی دل، انسان کا دماغ، انسانی پھیپھڑے اور گردے، انسان کی ہڈیاں، سب کچھ بیچا جا رہا ہے، اور وہ بھی کسی ایسی ویسی جگہ پر نہیں، پاکستان کی سب سے قدیم میڈیکل کی درسگاہ کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی لاہور میں، اور وہ بھی سریام۔ اور آج کے اس پروگرام میں سریام کی ٹیم کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی لاہور کے اس بھیانک مافیا کو بے نقاب کرنے کے لیے انسان کی لاش، انسانی دل، دماغ، پھیپھڑے اور انسانی ہڈیاں خریدنے کی کوشش کرے گی، اور بدقسمتی سے یہ کوشش کامیاب ہو جائے گی۔ لیکن چلتے پھرتے جنازوں والے اس معاشرے کی اصل بدقسمتی اس مافیا کے بے نقاب ہونے کے بعد سامنے آئے گی۔ سب سے پہلے کراچی کے مختلف اسپتالوں اور میڈیکل کالجز میں اپنی کوششوں کی ناکامی کے بعد ہم نے یہاں کے قبرستانوں کا رخ کیا، اور بہت جلد سریام کی ٹیم کی رسائی ایسے شخص تک ہو گئی جو ہمیں انسانی ہڈیوں کی فروخت پر آمادہ تھا۔ تو مجھے ذرا بتائیں، مجھے ایک یہ چاہیے، اس کی ہڈی گلے کی ہڈی چاہیے، اچھا، اور کیا چاہیے؟ اور ایک یہ ٹانگ کی ہڈی چاہیے، ٹھیک، مل اور جائے گی، کچھ انگلیاں چاہیے۔ مل جائے گی۔ اس شخص نے سریام کی ٹیم کے نمائندے کو کم از کم 2 بار غلط جگہ پر بلا کر ملنے کا وقت اور مقام آخری وقت پر تبدیل کیا، اور پھر کچھ اعتماد حاصل ہونے کے بعد بالآخر وہ سریام کے نمائندے سے ملاقات کے لیے تیار ہوا۔ یہ انسان، شاید اسے انسان کہنا بھی غلط ہے، چند ہزار روپے کے عوض انسانی ہڈیوں کی فروخت پر رضامند ہو گیا تھا۔ لیکن ٹھہریے، انسانی ہڈیوں کی فروخت کی یہ ڈیل اپنی ہولناکی اور خوفناکی کے اعتبار سے کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ بس کچھ ہی دیر بعد ہم آپ کو پاکستان کے الیکٹرانک میڈیا کی تاریخ کا سب سے بھیانک سچ دکھانے جا رہے ہیں کہ کس طرح سے ایشیا کی قدیم ترین کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی لاہور میں لاشوں کے سودے کیے جا رہے ہیں، اور کس طرح سریام کی ٹیم نے انسانی دل،
इंसानी दिमाग, फेफड़े और इंसानी हड्डियां सरेआम खरीदी। और ये भी कि खादिम आला पंजाब के लिए अपने सूबे में लाशों का बिकना शायद कोई हैसियत नहीं रखता। रूह को लर्जा देने वाले इस इंकशाफ से पहले हम आपको निस्बतन एक हल्की डोज दे रहे हैं ताकि आपका दिल और दिमाग इस कड़वे और हौलनाक सच का सामना करने के लिए तैयार हो सके। सरेआम की टीम को इंसानी हड्डियां बेचने पर आमादगी का इजहार करने वाले शख्स ने कुछ ही दिन बाद हमारे नुमाइंदे को एक मकामी कब्रिस्तान में बुलाया। कब्रिस्तान का नाम बताने से हम इसलिए गुरेज कर रहे हैं कि वहां पर दफन मरहूमीन के प्यारों की दिल आजारी ना हो, लेकिन अगर सरकारी सतह पर किसी भी तरह की तहकीकात होती हैं तो सरेआम की टीम हर तरह की मालूमात अफशा करने को तैयार है। सरेआम की टीम बताए हुए वक्त पर मुकर्ररा मकाम पर पहुंच गई थी। हमने एहतियात के पेश नजर इंसानी हड्डियां बेचने वाले इस शख्स के गिर्द 3 हिसार कायम करने का फैसला किया। 3 क्वेश्चन आप जाएं आगे, अपना स्कूल आप समझे कुछ भी नहीं है, इतना फासला कि बाकी पता चले कि कुछ नहीं है, ठीक है? और आप जो है वो इसको बैकअप करें। सबसे पहले सरेआम की टीम का नुमाइंदा कब्रिस्तान के छोटे गेट से कब्रिस्तान में दाखिल हुआ। कुछ मुनासिब फासले पर एक कैमरामैन जिसे दूर से कब्रों की आड़ लेकर इंसानी हड्डियों की इस डील को रिकॉर्ड करना था, और उससे भी कुछ फासले पर सरेआम की टीम का प्रोड्यूसर जिसने कैमरामैन से राबते में रहना था। बाकी तमाम टीम कब्रिस्तान की 4 दीवारी से थोड़ा दूर थी ताकि इंसानी हड्डियां बेचने के लिए आने वाले को शक न हो। गैर मुतवक्के तौर पर हड्डियां बेचने के लिए एक नहीं 2 लोग आए थे। इंसानी हड्डियों की खरीदो फरोख्त चल ही रही थी कि मंजर में अचानक एक तीसरे शख्स का इजाफा हुआ और उसने न जाने बाकी के 2 लोगों से ऐसा क्या कहा कि वो सरेआम के नुमाइंदे पर टूट पड़े। इंसानी हड्डियां बेचने वालों पर शायद ये बात खुल चुकी थी कि मीडिया वाले उन्हें बेनकाब करने के लिए ये हड्डियां खरीद रहे हैं। आप कहाँ से आए हो? नहीं, मेरी तो मुलाकात हुई थी, इनसे मुलाकात हुई थी। जैसे ही कुछ फासले पर मौजूद सरेआम के कैमरामैन को इस सूरत हाल का इदराक हुआ, उसने भी इन लोगों की जानिब दौड़ लगा दी और साथ ही सरेआम के प्रोड्यूसर को भी मुत्तला किया जो उसके साथ मुसलसल फोन पर मौजूद था। सरेआम के इस नुमाइंदे पर हमले की खबर जैसे ही बाकी टीम तक पहुंची, हम सब ने भी कब्रिस्तान की जानिब दौड़ लगा दी। आदि, एक मिनट, क्या हुआ? हमारे नुमाइंदे को अच्छी खासी चोटें आई थीं। कब्रिस्तान के अंधेरे रास्तों में हमने उन लोगों को तलाश करने की कोशिश भी की, लेकिन बेसूद। हमारा यकीन है कि बहुत जल्द हम ही इन लोगों को मंजर-ए-आम पर लाकर सरेआम बेनकाब करेंगे और उसके लिए हमने काम का आगाज कर दिया है। और अब प्रोग्राम सरेआम का अब तक का भयानक तरीन सच। एशिया का दूसरा कदीम तरीन इदारा किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी लाहौर, जो पाकिस्तान की बड़ी और सबसे पुरानी तिब्बी दरसगाह है और लाहौर के सबसे बड़े म्यू अस्पताल से मुंसलिक है। यहाँ किस तरह इंसानी लाशों की बेहुरमती और तजलील हो रही है, यहाँ मेडिकल के तलबा और तालिबात की तहकीक और रिसर्च के लिए मौजूद इंसानी लाशों, उनके आज़ा और इंसान की हड्डियों को यहाँ का एक माफिया बाहर के लोगों को सरेआम बेच रहा है। ये लाशें कोई काले इल्म का माहिर जादूगर ले या फिर इंसानी हड्डियों से सुफूफ तैयार करने वाला कोई हकीम, इन जानवर नुमा लोगों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सिर्फ इतना जानते हैं कि पूरी लाश की कीमत क्या लेनी है, दिल कितने में बेचना है, इंसान की कौन सी हड्डी कितने हजार की है, खोपड़ी के क्या दाम है, इंसानी फेफड़े किस भाव बिकेंगे या फिर इंसानी दिमाग के टुकड़ों का क्या मोल है। लाशों के ये सौदागर मामूल के मुताबिक सरेआम की टीम को भी इंसानी हड्डियां और आज़ा आसानी से फरोख्त कर गए
और लाश बेचने का वादा भी कर लिया। ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਲੈ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਇਹਨੇ ਤੇ ਡੈਡ ਬਾਡੀ ਲੱਭ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਤੇਰੀ ਦੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਨਾ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਡੈਡ ਬਾਡੀਆਂ ਇੰਨੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀਆਂ, 1.5-2 ਲੱਖ से डेड बाडियां मांगने। आज बंदा एक आया था मेडिकल कॉलेज का। शायद इन्हें मौत याद ही नहीं, शायद ये दरिंदे भूल चुके हैं कि अल्लाह की लाठी बेआवाज होती है और ये लाठी कभी भी सरेआम पड़ सकती है। मैं तो सिर्फ डेड बाडियां इन्ने नहीं लभदियां, 1.5-2 लाख से डेड बाडियां मांगने। आज बंदा एक आया था। लाशें बिक रही हैं सर पंजाब में, आपसे हमने बात करनी सर। सर रिस्पांस आपका कोई बंदा नहीं दे रहा है सर। प्रोग्राम सरेआम के ईमा पर ARY न्यूज लाहौर के नुमाइंदे आसिफ कुरैशी ने मुल्की तारीख की इस हौलनाक तरीन स्टोरी पर काम का आगाज किया। दूसरी जानिब सरेआम की टीम ने इंसानी लाश या इंसानी आज़ा खरीदने से पहले मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र के उलमा से उनकी राय मालूम करने का फैसला किया कि अगर हम एक बदतरीन बुराई और बद से भी बदतरीन माफिया को बेनकाब करने के लिए खुद इंसानी लाश का सौदा करते हैं या फिर इंसानी दिल, दिमाग, फेफड़े और इंसानी हड्डियां खरीदते हैं, तो क्या ये दुरुस्त होगा? क्योंकि इस खतरनाक और हसास तरीन प्रोग्राम पर काम करते हुए हम हर कदम फूंक फूंक कर रखना चाहते थे। सरेआम की टीम सबसे पहले अल्लामा डॉक्टर हसन रिजवी की रिहाइशगाह पर पहुंची और उनसे अपना मसला बयान किया। अल-आमालु बिन्नियात, अमल का दारोमदार नियत पर होता है। अगर आप इंसानी आज़ा की बेहुरमती करने के लिए खरीद रहे हैं उनको, तो जाहिर है कि ये हराम काम है। लेकिन अगर आप इसलिए खरीद रहे हैं कि आप मालूम करें कि ये बेहुरमती कौन कर रहा है, कहाँ से ये बदमाशी हो रही है, तो गोया आप एक बुराई को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। जाहिर है कि यही तो नहीं मुनकर है, नहीं मुनकर यही है कि बुराई को रोकना। सरेआम की टीम ने यही सवाल मारूफ आलिम दीन मुफ्ती मोहम्मद नईम के सामने भी रखा कि अगर एक खौफनाक सच्चाई पर से पर्दा उठाने के लिए सरेआम की टीम इंसानी लाश या इंसानी आज़ा खरीदे तो क्या हम कोई गलत काम कर रहे होंगे? अगर कोई तरीका आपके पास नहीं है और आप उन लोगों को बेनकाब करना चाहते हैं तो फिर इसकी इजाज़त मिल जाएगी शरई एतबार से, तो बशर्ते कि आपकी नीयत उन लोगों को बेनकाब करना है। आपका ये इक़दाम यकीनन काबिल तहसीन है कि हुकूमत और रियासत के उन हुक्काम बाला को शऊर देने के लिए या अखबार व मालूमात पहुँचाने के लिए अमर बिल मारूफ व नही मुनकर का जो ये काम कर रहे हैं, यकीनन ये काम हर सूरत में काबिल सताइश और काबिल तारीफ़ है। इंसानी लाशें बेचने वाले माफिया को बेनकाब करने के लिए सरेआम की टीम को एक से ज्यादा बार इंसानी आज़ा खरीदना थे। इन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जाना था और इसके अलावा भी इस मामले में संगीन तरीन कानूनी पेचीदगियां मौजूद थीं, क्योंकि मिशन मुकम्मल होने से पहले पकड़े जाने की सूरत में हम या हमारी टीम का मुतल्लिका रुकन भी ज़ेरे अताब आ सकता था। सो हमने कानूनी राय भी हासिल करने का फैसला किया और ये सब तैयारियां थीं मुल्की तारीख के इस अजीबो गरीब, हौलनाक और खौफनाक स्कैंडल को सरेआम लाने की। हमने एडवोकेट साहब से ये भी पूछा कि लाशें बेचने वालों को सामने लाने के लिए अगर लाशें खरीदना पड़े तो कानून क्या कहता है। जी बिल्कुल, कानून इसको बिल्कुल कवर करता है और पाकिस्तान के ज़ाब्ता फौजदारी में, पाकिस्तान पिनल कोड में बाकायदा इस जुर्म का जिक्र मौजूद है। ये बुनियादी तौर पे इंसानी लाश की बेहुरमती में आता है और इसके लिए जो है वो 1 साल तक कैद की सज़ा है और जुर्माना भी है और दोनों भी हो सकते हैं। मजहबी और कानूनी आरा से हौसला अफजाई के बाद हम इस हैबतनाक सच्चाई की खोज में लाहौर पहुंचे। यहाँ किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में इंसानी लाशों की फरोख्त की मुसद्दिका इत्तलात हमारे पास मौजूद थी। दरअसल मेडिकल के स्टूडेंट्स की तालीम के लिए इंसानी आज़ा ज़रूरी तस्वुर किए जाते हैं और इन पर प्रैक्टिकल्स के बाद ही ये तालिब इल्म अमली ज़िंदगी में डॉक्टर बनकर जीते जागते इंसानों का इलाज करते हैं। यूं तो आजकल मेडिकल की तालीम के लिए इंसानी जिस्म से बिल्कुल मुशाबे और मिलती जुलती डमीज भी दस्तयाब हैं और पाकिस्तान के कुछ मेडिकल कॉलेजेस में इन पर तालीम दी भी जा रही है, लेकिन फिर भी सीनियर डॉक्टर्स इसे असल इंसानी लाश का नेमुल बदल नहीं मानते। सो डॉक्टरी की मुकम्मल तालीम के लिए इंसानी लाश और आज़ा अब भी नागुज़ीर हैं।
मुस्तकबिल के डॉक्टरों की तालीम के लिए लाशों के हुसूल के आम तौर पर दो तरीके हुआ करते हैं। एक ये कि कोई अपना जिस्म इंसानियत की इस खिदमत के लिए अतिया करके इस दुनिया से रुखसत हो, या फिर वो लावारिस लाशें जिन्हें एक मुकर्ररा मुद्दत गुजर जाने के बाद भी मुर्दा खानों से लेने कोई नहीं आता। ऐसी लाशें भी मेडिकल कॉलेजेस के एनाटॉमी डिपार्टमेंट के हवाले कर दी जाती हैं, जो खालिसतन मेडिकल स्टूडेंट्स और प्रैक्टिकल के लिए होती हैं, और पढ़ाई मुकम्मल होने के बाद इन लाशों की बाकियात को दफन कर दिया जाता है। लेकिन किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी लाहौर जैसी पाकिस्तान की इस बड़ी दरसगाह का एनाटॉमी डिपार्टमेंट ऐसी लाशों और इंसानी आज़ा की फरोख्त की मंडी बना हुआ है। इस डिपार्टमेंट के कारिंदे काले इल्म के लिए बाआसानी इंसानी दिल बेचने पर भी राजी हो जाते हैं और इंसानी लाश की फरोख्त पर भी। ज्यादा पैसे ले रहे हैं, मैं तो ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਡੈਡ ਬਾਡੀ ਲੱਭ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋ ਤੇਰੀ ਦੇ ਮੈਂ ਤੇ ਨਾ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਹਰ ਡੈਡ ਬਾਡੀਆਂ ਇੰਨੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀਆਂ, 1.5-2 ਲੱਖ से ਡੈਡ ਬਾਡੀਆਂ ਮੰਗਦੇ ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਆਇਆ ਸੀ। और सरेआम की टीम के पास इस दिल दहला देने वाली सच्चाई की एक रिकॉर्डिंग मौजूद है। प्रोग्राम देखते जाइए मगर दिल थाम कर। किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी लाहौर के तलबा की तालीम के हक पर डाका डालते हुए यहाँ लाशें और इंसानी आज़ा इस तरह आलू प्याज की तरह सरेआम बेचे जा रहे हैं कि इन्हें बेचने वालों का नंबर हासिल करना कोई मुश्किल काम नहीं था। प्रोग्राम सरेआम के लिए आसिफ कुरैशी ने लाशें बेचने वाले इंसान से राबिता किया। खुदा मालूम ऐसे शख्स को इंसान कहा भी जा सकता है या नहीं, जो आने वाले वक्त में काले जादू के लिए हमें इंसानी दिल बेचने वाला था। वो करता है कुछ जादू जादू ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਜੇ ਅਗਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨੰਬਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਿਓ। ਇਨਸਾਨੀ ਦਿਲ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤਮਾਤ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਜਾਦੂਗਰ ਨਹੀਂ ਤਮਾਤ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਤਮਾਤ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਪੈਸੇ ਬੜੇ ਲੈਗਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਦੂ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਸਾਫ਼ ਦੱਸਦਾ, ਜਾਦੂ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ को बड़े पैसे लेता है, कम से कम 50,000 60,000 रुपये लेता लेता। कोई इंसान जिसके अपने सीने में भी एक दिल धड़कता हो, वो चंद हजार रुपए के एवज किसी दूसरे इंसान का दिल काले इल्म के लिए कैसे बेच सकता है? ये कहना और सुनना आसान है, लेकिन जरा एक लम्हे को सोचिए तो कि ये इंसानियत का कितना घटिया तरीन दर्जा है। और क्या हम सब बेहसियत कौम इस गुनाहे कबीरा से बरियो जिम्मा हो सकते हैं? लेकिन जहां जिंदा सांस लेते और जीते जागते इंसानों की कोई औकात ना हो, उस मुआशरे में कोई मुर्दों को क्या इज्जत और क्या तहफ्फुज देगा? हमारे नुमाइंदे से पहले ही टेलीफोनिक राबिते पर वो शख्स हमें इंसानी हड्डियां बेचने को तैयार हो गया, क्योंकि हमने सिर्फ हड्डियों का ही मुतालबा किया था। उसने ये जानने की जहमत भी नहीं की कि हमें ये हड्डियां क्यों और किस मकसद के लिए चाहिए। अगले ही रोज उसने हमें हड्डियां फराहम करने के लिए लाहौर के मियो अस्पताल बुला लिया। हाँ जी हाँ जी ठीक। सोचने की बात यह है कि ये किस तरह मुमकिन है कि वो यूं सरेआम एशिया के इस बड़े अस्पताल में इंसानी हड्डियां बगैर मुतल्लिका हुकाम की आशीर्वाद के बेचता फिरे। सरेआम की टीम दूर गाड़ी से ये तमाम मनाजिर रिकॉर्ड कर रही थी और हमारा नुमाइंदा भी इन मनाजिर को अपने मोबाइल से मुसलसल फिल्मा रहा था। मुख्तसर गुफ्तगू के बाद इस आदमी ने 5,000 रुपए के इवज एक इंसान की, जी हाँ एक मरे हुए इंसान की हड्डियां हमारे नुमाइंदे के हवाले कर दी, और वो भी मियो अस्पताल लाहौर के मरकजी चौराहे पर। इस बार भी ये शख्स कुछ मजीद इंसानी हड्डियां हमें बेचने पर आमादा हो गया। उसे इस बात से कोई सरोकार नहीं था कि हम कौन हैं और ये इंसानी हड्डियां क्यों खरीद रहे हैं। उसे तो बस मुंह मांगे दाम मिल रहे थे अपनी इंसानियत को बेचने के। इंसानी हड्डियां बेचने वाले इस इंसान ने हमारे नुमाइंदे को ये भी बताया कि हड्डियां और इंसानी आज़ा बेचने पर पहले से ही किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी लाहौर में एक इंक्वायरी चल रही है, यानी ये हड्डियां और इंसानी आज़ा पहली बार फरोख्त नहीं किए जा रहे थे। और उस नाम निहाद इंक्वायरी पर लानत भेजने के अलावा और क्या किया जा सकता है, जिसके चलते हुए भी ये शख्स फिर से वही मकरूह काम कर रहा था।
हमारे नुमाइंदे ने आहिस्ता आहिस्ता बात आगे बढ़ाना शुरू की कि हमें दिल, दिमाग, इंसानी फेफड़े और इंसानी जिगर वगैरह भी चाहिए। वो तो बस जैसे तैयार बैठा था। उसने ऐसा तासुर दिया कि जैसे ये उसके बाएं हाथ का खेल हो। बस दाम बढ़ाने के लिए उसने इतना जरूर कहा कि इंसानी दिल और जिगर वगैरह के मुतल्लिका इंचार्ज को पैसे लगाने पड़ेंगे। दो चीज़ां होंगी, लंग होएगा और किडनी होएगी, स्प्लीन होएगी, हार्ट होएगा, ठीक है, ते ब्रेन होएगा। बेज़मीरी, बेहिसी और बेगैरती की इंतहा ये है कि ये शख्स जो हमें इंसानी हड्डियां बेचने आया था और अब जो हमारे साथ इंसानी दिल, दिमाग और फेफड़ों का सौदा कर रहा था, वो बार बार ये कह रहा था कि मैं मस्जिद के पास खड़ा हूँ, झूठ नहीं बोलता। इस पर तबसरे के लिए मेरे पास कोई मुहज़्ज़ब लफ्ज़ नहीं है, सो जाने दीजिए। इंसानी दिल, जिगर, दिमाग और फेफड़े हमारे नुमाइंदे को बेचने के लिए इस शख्स ने एडवांस रकम का मुतालबा किया और इस मकसद के लिए उसने हमें लाहौर के कदीमी रेलवे स्टेशन के सामने वाले पार्क में बुला लिया। बस यही वो मौका था जहां इस शख्स ने रूह को लर्जा देने वाले इंकशाफात किए। मुलाहिजा कीजिए कि ये किस रवानी से बता रहा है कि 1.5 लाख में इंसानी लाश मिल जाती है। इस शख्स ने यह भी बताया कि एक शख्स इसके साथ मिलकर ये काम करता था, लेकिन अब वो मर चुका है। और हैरत है कि ये बताते हुए भी उसे अपनी मौत याद नहीं थी। डेड बॉडी का एक बंदा डेड करता सी, वो मर गया है, वो भी थाने थ्रू करता सी। तमाम तर खौफ और एहतियात के बावजूद ये शख्स हमें इंसानी लाश खरीद कर देने के लिए तैयार था। वो बता रहा था कि किस तरह बाहर से लाश हमें हैंड ओवर की जा सकती है और कोई हमें लाश ले जाते हुए रोके ना, इसके लिए पुलिस का लेटर हेड भी तैयार किया जा सकता है। थाने चो डेड बॉडी पहुंचा बाहरों डेड हाउस नहीं आएगा। अच्छा, डेड हाउस बॉडी नहीं आएगी, वो है एक बाहरों कोई जहाज फोट होवे, उदों ही उन्हें राबता करे, वो बंदा तुहानू बुलावे, वो मेडिकल वाले कि हाँ जी भाई अपनी एंबूलेंस भेजो, वो अपनी उतों पैड इतने किसी पैड के उत्ते लैटर पैड बनवा के इजाजत ना मेरा। लाश के बाद वो वापस हड्डियों पर आया और उसने हमारे नुमाइंदे को बताया कि उसने हमारे लिए एक इंसानी खोपड़ी का एहतमाम भी कर रखा है, जिसे तेजाब में डालने के बाद ये खोपड़ी चमकती हुई हालत में वो हमें देगा। खोपड़ी मैडम ये बदली लोअर लिम चढ़ा गई कल्ला पईयां ने, मैडम कल्ला चढ़ाएगी, ये बाजी का रीजन भी शुरू नहीं होया, पता है जो साडा रीजन शुरू होना वो दूसरे का रीजन शुरू होना है। और अब प्रोग्राम का सबसे बड़ा झटका। इंसानी दिल थोड़े टमाट वाला है, ये बता दें क्या क्या है इसके अंदर? दिल, हाँ वो पढ़ने के लिए आता है। लाशें बिक रही हैं सर पंजाब में, आपसे हमने बात करनी सर। सर रिस्पॉन्स आपका कोई बंदा नहीं दे रहा है सर। और अब प्रोग्राम का सबसे बड़ा झटका। अब तक तो हमें इंसानी हड्डियां और आज़ा बेचने वाले ने हमारी शनाख्त की जहमत ही गवारा नहीं की थी और ना ही ये जानने में उसे दिलचस्पी थी कि हम उससे ये सब क्यों खरीद रहे हैं। लेकिन अब हमारे नुमाइंदे आसिफ कुरैशी उसे बता रहे थे कि एक शख्स को काले इल्म के लिए इंसानी दिल चाहिए और उसका रद्द अमल सिर्फ ये था कि बंदा एतमाद वाला है ना। बंदा जादूगर एतमाद वाला है, बंदा पैसे बड़े लेगा, ये मैं तो जादू वाले बंदे को बड़े पैसे लेता है, मैं तो सीधा साथ जादू वाले बंदे को बड़े पैसे लेता है, कम से कम 50,000 60,000 रुपये लेता। और फिर साथ ही इनडायरेक्टली उसने अपने रेट बढ़ाने की कोशिश की और कहने लगा कि मैं जिससे दिल लूंगा वो काले इल्म के लिए जरा महंगा दिल बेचता है, 50-50, 60-60 हजार का। काले दिल और काले खून वाला ये शख्स हमें काले इल्म के लिए इंसानी दिल बेचने पर भी तैयार हो गया था। हालांकि वो बाकी चीजें जो हमें बेच चुका था या बेचने वाला था, वो उनके बारे में भी नहीं जानता था कि हम उनका क्या करेंगे। मगर हमने ये सवाल उससे सिर्फ इसलिए पूछा कि देखने वालों को अंदाजा हो सके कि ये आदमी किसी अच्छे काम या डॉक्टरी की तालीम के लिए ये आज़ाद नहीं बेच रहा था। उसकी नीयत सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाने की थी। क्या आप और मैं कभी चाहेंगे कि हमारी या हमारे प्यारों की हड्डियां या दिल, दिमाग कोई काले जादू के लिए बेचता फिरे? काले इल्म के लिए इंसानी दिल बेचने का वादा
किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के उन तमाम जिम्मेदारान के मुंह पर तमाचा है जो हमारे सामने तो आकर बात करने को तैयार नहीं, मगर इधर उधर मुख्तलिफ रिपोर्टर्स से कहते फिरते हैं कि ये तमाम चीजें तो मामूल की बात है। अगर ये मामूल की बात है तो फिर खाकम बदहन इन लाशों की जगह खुद को या फिर अपने प्यारों को रखकर देखें, होश ठिकाने आ जाएंगे। आखिर इदारों का कोई ज़ाबिता, कोई कानून हुआ करता है। इस कदीम तरीन मेडिकल यूनिवर्सिटी के अहम तरीन डिपार्टमेंट का आखिर तो कोई रिकॉर्ड होता होगा। कितनी लाशें यहाँ लाई गईं और कितनी लाशों की बाकियात दफन की गईं, किन किन आज़ा को मेडिकल के तलबा की तालीम के लिए इस्तेमाल किया गया, ये सब चीज़ें किसी ज़ाबिते में तो आती होंगी। कोई क्लरिकल स्टाफ तो इन सब चीज़ों का रिकॉर्ड रखने का जिम्मेदार होगा। गाजर मूली का भी हिसाब रखा जाता है। ये तो इंसानी लाशें हैं और इन सब पर इस डिपार्टमेंट की एक हेड, आखिर उसकी भी तो कोई जिम्मेदारी होती है। और फिर इदारे का सरबराह वाइस चांसलर, जिन्हें पता है कि ये हो रहा है, जो लाशें बेचने वाले के बकौल जानते हैं कि लाशें बेचने पर पहले से भी एक इंक्वायरी चल रही है। इसके बावजूद भी वो शख्स सब इंसानी आज़ा लाकर हमें बेच देता है, और वो भी काले इल्म के लिए। कोई अंधेर नगरी है, किसी जंगल का कानून है। फैसला आप खुद कीजिए कि क्या ये सब लोग भी इस इंसानियत सोज जुर्म में बराबर के शरीक हैं या नहीं। लाशों का ये सौदागर सरेआम की टीम को इंसान का दिल, इंसानी फेफड़ा, इंसानी गुर्दा और इंसानी दिमाग बेचने को तैयार हो गया था, और अब सरेआम की टीम इंसान के अंदर के ये तमाम आज़ा इस शख्स से खरीदने लाहौर के म्यू अस्पताल जा रही थी। हमें म्यू अस्पताल के इहाते में ही बुलाया गया था और हमारा मंसूबा ये था कि एक गाड़ी में सरेआम की टीम मौजूद रहेगी और दूसरी गाड़ी में आसिफ कुरैशी उस शख्स को बुलाएंगे, क्योंकि गाड़ी से बाहर अगर वो माइक और कैमरा देखता तो बआसानी वहां से भाग सकता था। गाड़ी में बैठते ही उस शख्स ने बड़े इत्मीनान से अपने साथ लाए हुए थैले से इंसान का दिल, इंसानी दिमाग, फेफड़े और दूसरे आज़ा निकालकर हमारे नुमाइंदे को दिखाना शुरू कर दिए। इस आदमी ने इंसानी आज़ा, इंसानी दिल, जिगर, गुर्दे, फेफड़े सब हमारे नुमाइंदों को हैंडओवर कर दिए, और अब गाड़ी के अंदर चूँकि मौजूद है, आसानी से हम इसे पकड़ सकेंगे और मज़ीद बात करेंगे। हम चाहते थे कि इस घिनौने काम में मुलव्विस बाकी लोग भी बेनकाब हों, मगर उसका इसरार था कि वो अकेला ही ये काम कर रहा है। ये बता दें क्या क्या है इसके अंदर। इसमें बिसरे हैं, बिसरे हैं इंसानी, हाँ, और बस दिल। हाँ, वो पढ़ने के लिए आता है। पढ़ने के लिए क्या मतलब? पढ़ाई के लिए। ये आगे ले जाएं, वहाँ पर गाड़ी ले जाएं, कोई बात नहीं। इन्वॉल्व कौन कौन है इसमें? कोई भी नहीं है। मैंने यार आप आगे ले जाएं, सारे इकट्ठे मेरे पे। बहरहाल पुलिस के खौफ से बिल आखिर उसने अपने दूसरे साथी का पता भी बता दिया। मैं किसी ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਟੈਲੀਫੋਨ, ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰਾ ਦੇਗਾ, मेरी गल करा देगा उन्हें। पांजी बोलना ना। उससे राबिता ना हो सकने पर उसने हमें अपने साथ एनाटॉमी डिपार्टमेंट में उस शख्स तक ले जाने की पेशकश की, मगर इस शर्त के साथ कि हम कैमरा लेकर वहां नहीं जाएंगे। पांजी उसी ना मेरे नाल चल, मेरी गल मुंडा जिन मैं टेलीफोन का कंटेन पे चला गया, दूसरा मुंडा पे है। सो हमने मोबाइल कैमरे की मदद से इन सब मनाजिर को रिकॉर्ड किया। इस डिपार्टमेंट के इस मुलाजिम से हमारा तारुफ एक गाहक के तौर पर करवाया गया, सो वो बआसानी हमारे साथ गाड़ी तक चलने पर रजामंद हो गया। लेकिन जैसे ही उसे सूरत हाल की संगीनी का एहसास हुआ, उसके पैरों के नीचे से जैसे जमीन निकल गई। भाईजान मेहरबानी है। पुलिस या वाइस चांसलर ऑफिस। काफी देर कशमकश में रहने के बाद हमने इन लोगों को किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के दफ्तर ले जाने का फैसला किया कि इदारे के सरबराह की हैसियत से वो खुद इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करें, मगर वो अपने दफ्तर में मौजूद नहीं थे। हमने हर तरह से अपनी जिम्मेदारी का एहसास किया। इन लोगों को पुलिस के पास ले जाने से पहले हम इन्हें एनाटॉमी डिपार्टमेंट की चेयरपर्सन डॉक्टर रफिया तफवीज के दफ्तर लेकर पहुंचे, लेकिन वो भी दफ्तर में तशरीफ फरमा नहीं थी। मगर उनके डिपार्टमेंट जाकर हम पर यह हैरत अंगेज इंकशाफ हुआ कि इस अहम तरीन डिपार्टमेंट को किस तरह से इंसानी लाशें बेचने वालों के रहमो करम पर छोड़ दिया गया था। मेडिकल के तलबा की तालीम के लिए इस डिपार्टमेंट में मौजूद इंसानी लाशों, इंसानी आज़ा और कीमती सामान का कोई पुरसाने हाल नहीं था। दोनों मुल्जिमान हमें बड़ी आसानी से डिपार्टमेंट के अंदर तक ले गए थे। हमें वो जगह दिखा रहे थे जहां तालिबे इल्म डायसेक्शन करते हैं,
जहां अब भी एक मेज पर इंसानी लाश मौजूद थी। इंसानी आज़ा और इंसानी हड्डियां भी मुख्तलिफ अलमारियों में रखी थीं। ये सब मेडिकल की तालीम का लाजमी हिस्सा सही, लेकिन क्या उन लोगों को निशाने इबरत नहीं बना देना चाहिए जो इस डिपार्टमेंट की हिफाजत के जिम्मेदार हैं, जिन्हें इस डिपार्टमेंट को चलाने और इसका रिकॉर्ड रखने की बाकायदा तनख्वाह मिलती है, वो जो इस डिपार्टमेंट के नाम निहाद सरबराह हैं। ये कितनी अजीब बात है कि यहाँ कानूनी तौर पर लाई जाने वाली इंसानी लाशों में से आज़ा निकाल कर बाहर काले जादू तक के लिए गैर कानूनी तौर पर बेचे जाएं और ऊपर से नीचे तक किसी के कान पर भी जूं तक न रेंगे। सरेआम की टीम एक बार फिर वाइस चांसलर के दफ्तर पहुंची, जहां हमारी उनके किसी असिस्टेंट से बात करवाई गई। हमने उनसे सारा मामला बयान किया और फिर कुछ ही देर में हमें बताया गया कि वीसी साहब इस वक्त ऑपरेशन थिएटर में मौजूद हैं। थिएटर में है इस वक्त, तो वो बिजी हैं। ठीक है। 2-2.5 घंटे उनको भी लग जाएगा। लेकिन हम खुदा को हाजिर नाजिर जानकर आपको बताते हैं कि जिस वक्त इस घिनौने और भयानक मसले पर वीसी साहब हमसे मुसलसल बात करने से गुरेज कर रहे थे, उसी वक्त वो मुख्तलिफ रिपोर्टर से फोन करके हमारे बारे में मालूमात हासिल करने की कोशिश कर रहे थे। हमने बिल आखिर तंग आकर मुतल्लिका पुलिस को इत्तला की। तवील इंतजार के बाद हमें एक दरखास्त लिखने का कहा गया और फिर इंसानी हड्डियों और आज़ा समेत मुल्जिमान को थाना गवाल मंडी मुंतकिल कर दिया गया। SHO साहब के रवैये और जाहो जलाल से हमें ऐसे लग रहा था जैसे शायद हमसे कोई जुर्म सरजद हो गया है। खैर, उनके हुक्म पर दोबारा से एक दरखास्त तहरीर की और पुलिस को इस जुर्म की दफात तलाश करता छोड़कर हम इस थाने से बाहर निकल आए। इंसानियत की तजलील के इससे बदतरीन शर्मनाक वाक़े और स्कैंडल के मंजर-ए-आम पर आने के बाद सरेआम की टीम ने अपनी कानूनी जिम्मेदारी पूरी की है, दरखास्त गुजारी है थाना ग्वाल मंडी में। अब देखना यह है कि इंसानियत की इस तज़हीक और तजलील के खिलाफ कानून किस तरह से हरकत में आता है। हमने अपना हर फर्ज पूरा किया। एनाटॉमी डिपार्टमेंट की चेयरपर्सन, किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, वज़ीर आला पंजाब के मुआविन खुसूसी बराए सेहत ख्वाजा सलमान रफीक और पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए सेहत डॉक्टर सईद इलाही से हर मुमकिन राबिते की कोशिश की। इन सब से हमारी बराह रास्त बात हुई और सबको हमने इंसानी लाशों और इंसानी आज़ा की सरेआम फरोख्त के बारे में बताया, मगर किसी में इतनी अखलाकी जुर्रत नहीं थी कि वो कैमरे के सामने आकर इस अमल की मजम्मत ही कर देता। आइंदा ऐसा नहीं होगा, इस बात के लिए इक़दामात का ऐलान ही कर देता। हर तरफ से मायूस होने के बाद हमने बिल आखिर ऐवान इकबाल में मुनक्किदा डेंगी सेमिनार जाने का फैसला किया, क्योंकि यहाँ मुतल्लिका हुक्काम के मिलने का इम्कान मौजूद था। 3 दिन से मुसलसल हम राब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं महकमा सेहत के मुतल्लिका हुक्काम से, और अब हमें इत्तला मिली है कि ऐवान इकबाल में कॉन्फ्रेंस जारी है, जिसमें वज़ीर आला पंजाब के मुआविन खुसूसी बराए सेहत ख्वाजा सलमान रफीक भी मौजूद हैं, वाइस चांसलर किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी भी हैं। कोशिश करेंगे कि यहाँ कम से कम वो बात करें। उनके दफातर से हमें मुसलसल कोई जवाब मौसूल नहीं हो रहा। उनके टेलीफोन पर हमने मैसेजेस छोड़े, हमारे मोबाइल फ़ोन में उनका रिकॉर्ड मौजूद है। कोई भी जिम्मेदार शख्स अब तक इस अहम तरीन, संगीन और भयानक मौजू पर बात करने के लिए हमसे तैयार नहीं हुआ। अब आगे देखते हैं कि ये लोग अपना मौक़िफ़ पेश करते हैं या अब भी सच से नजरें चुराएंगे। सरेआम की टीम ऐवान में दाखिल हुई तो खादिम आला अपने मखसूस जोशे खिताबत से दिलों को गरमा रहे थे और खूब दाद वसूल कर रहे थे। बस उसी लम्हे हमने सोचा कि ये भले आदमी हैं, इनके इल्म में ये बात लाना इंतहाई ज़रूरी है ताकि आइंदा लाशों की बेहुरमती को रोका जा सके। हमने मुख्तलिफ रास्तों से मोहतरम खादिम आला के डाइस के करीब पहुँचने की कोशिश की। हम इसी कोशिश में थे कि उनकी धुआंधार तकरीर खत्म हो गई और वो बिजली की सी तेजी से अकबी दरवाजे से बाहर निकल गए और हमने भी उनके पीछे दौड़ लगा दी। हमें बताया गया कि बस वो कुछ ही देर में कमरे से बाहर आ जाएंगे और हम भी वहां डट गए। खादिम आला जनाब शहबाज शरीफ कमरे से बाहर तशरीफ लाए तो एक खातून ने अपने किसी मसले के लिए उन्हें रोक लिया। उन्होंने बड़े तहम्मुल से बात सुनी। हमने भी आदाब को मलहूज रखते हुए कोई दखल नहीं दिया। जब उन्हें फरागत हुई तो हम आगे बढ़े, निहायत अदब से सलाम अर्ज किया और फिर अपना सवाल। मगर वतन अजीज के हुक्मरानों के रोब और दबदबे और शाही जाहो जलाल को शायद ऐसी जसारतें नागवार गुजरती हैं। लाशें बिखरी हैं सर पंजाब में।
आपसे हमने बात करनी सर। सर रिस्पॉन्स आपका कोई बंदा नहीं दे रहा है सर, कोई एक आदमी रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है सर। खादिम आला के गार्ड्स ने हमें धक्का देकर एक तरफ कर दिया था और शहबाज शरीफ साहब की शाही सवारी हमारी गुनाहगार आंखों के सामने आन की आन में गायब हो गई थी। और मैं अब तक ये सोच रहा हूँ कि ये तो हो ही नहीं सकता कि शहबाज शरीफ ने मेरी ये बात सुनी ना हो कि सर पंजाब में लाशें बिक रही हैं। और लाशें बिकने की बात सुनकर भी वो रुके नहीं। उन्होंने पूछा नहीं कि कहाँ और क्यों ऐसा हो रहा है। शायद उनके नज़दीक इंसानी लाशों का बिकना कोई बड़ी बात नहीं, या फिर शायद वो इन लोगों को इंसान ही नहीं समझते। आपकी समझ में कुछ आए तो हमें ज़रूर बताइएगा। मकाम पर पहुंच गई थी। हमने एहतियात के पेश नजर इंसानी हड्डियां बेचने वाले इस शख्स के गिर्द 3 हिसार कायम करने का फैसला किया। 3 क्वेश्चन, आप जाएं आगे, अपना आप समझे कुछ भी नहीं है, इतना फासला कि बाकी पता चले कि कुछ नहीं है, ठीक है? और आप जो है वो इसको बैकअप करें। सबसे पहले सरेआम की टीम का नुमाइंदा कब्रिस्तान के छोटे गेट से कब्रिस्तान में दाखिल हुआ। कुछ मुनासिब फासले पर एक कैमरामैन जिसे दूर से कब्रों की आड़ लेकर इंसानी हड्डियों की इस डील को रिकॉर्ड करना था, और उससे भी कुछ फासले पर सरेआम की टीम का प्रोड्यूसर जिसने कैमरामैन से राबते में रहना था। बाकी तमाम टीम कब्रिस्तान की 4 दीवारी से थोड़ा दूर थी ताकि इंसानी हड्डियां बेचने के लिए आने वाले को शक न हो। गैर मुतवक्के तौर पर हड्डियां बेचने के लिए एक नहीं 2 लोग आए थे। इंसानी हड्डियों की खरीदो फरोख्त चल ही रही थी कि मंजर में अचानक एक तीसरे शख्स का इजाफा हुआ और उसने न जाने बाकी के 2 लोगों से ऐसा क्या कहा कि वो सरेआम के नुमाइंदे पर टूट पड़े। इंसानी हड्डियां बेचने वालों पर शायद ये बात खुल चुकी थी कि मीडिया वाले उन्हें बेनकाब करने के लिए ये हड्डियां खरीद रहे हैं। आप कहाँ से आए हो? नहीं, मेरी तो मुलाकात हुई थी, इनसे मुलाकात हुई थी। जैसे ही कुछ फासले पर मौजूद सरेआम के कैमरामैन को इस सूरत हाल का इदराक हुआ, उसने भी इन लोगों की जानिब दौड़ लगा दी और साथ ही सरेआम के प्रोड्यूसर को भी मुत्तला किया जो उसके साथ मुसलसल फोन पर मौजूद था। सरेआम के इस नुमाइंदे पर हमले की खबर जैसे ही बाकी टीम तक पहुंची, हम सब ने भी कब्रिस्तान की जानिब दौड़ लगा दी। आदि क्या हुआ? हमारे नुमाइंदे को अच्छी खासी चोटें आई थीं। कब्रिस्तान के अंधेरे रास्तों में हमने उन लोगों को तलाश करने की कोशिश भी की, लेकिन बेसूद। हमारा यकीन है कि बहुत जल्द हम ही इन लोगों को मंज़िल-ए-आम पर लाकर सरेआम बेनकाब करेंगे, और उसके लिए हमने काम का आगाज कर दिया है। और अब प्रोग्राम सरेआम का अब तक का भयानक तरीन सच। एशिया का दूसरा कदीम तरीन इदारा किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी लाहौर, जो पाकिस्तान की बड़ी और सबसे पुरानी तिब्बी दरसगाह है और लाहौर के सबसे बड़े म्यू अस्पताल से मुंसलिक है। यहाँ किस तरह इंसानी लाशों की बेहुरमती और तजलील हो रही है, यहाँ मेडिकल के तलबा और तालिबात की तहकीक और रिसर्च के लिए मौजूद इंसानी लाशों, उनके आज़ा और इंसान की हड्डियों को यहाँ का एक माफिया बाहर के लोगों को सरेआम बेच रहा है। ये लाशें कोई काले इल्म का माहिर जादूगर ले या फिर इंसानी हड्डियों से सुफूफ तैयार करने वाला कोई हकीम, इन जानवर नुमा लोगों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सिर्फ इतना जानते हैं कि पूरी लाश की कीमत क्या लेनी है, दिल कितने में बेचना है, इंसान की कौन सी हड्डी कितने हजार की है, खोपड़ी के क्या दाम है, इंसानी फेफड़े किस भाव बिकेंगे, या फिर इंसानी दिमाग के टुकड़ों का क्या मोल है। लाशों के ये सौदागर मामूल के मुताबिक सरेआम की टीम को भी इंसानी हड्डियां और आज़ा आसानी से फरोख्त कर गए और लाश बेचने का वादा भी कर लिया।
ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਲੈ ਰਹੇ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਐਨੇ ਤਾਂ ਡੈਡ ਬਾਡੀ ਲੱਭ ਜਾਣੀ ਹੈ ਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋ ਤੇਰੀ ਦੇ ਮੈਂ ਤੇ ਨਾ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਹਰ ਡੈਡ ਬਾਡੀਆਂ ਇੰਨੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀਆਂ 1.5-2 ਲੱਖ से डेड बाडियां मांगने आज बंदा एक आया था मेडिकल कॉलेज का। शायद इन्हें मौत याद ही नहीं, शायद ये दरिंदे भूल चुके हैं कि अल्लाह की लाठी बेआवाज होती है और ये लाठी कभी भी सरेआम पड़ सकती है। मैं तो सिर्फ हर डेड बाडियां इन्हें नहीं लभ रही 1.5-2 लाख से डेड बाडियां मांगने आज बंदा एक आया था। लाशें बिक रही हैं सर पंजाब में, आपसे हमने बात करनी सर। सर रिस्पांस आपका कोई बंदा नहीं दे रहा है सर। प्रोग्राम सरेआम के ईमा पर ARY न्यूज लाहौर के नुमाइंदे आसिफ कुरैशी ने मुल्की तारीख की इस हौलनाक तरीन स्टोरी पर काम का आगाज किया। दूसरी जानिब सरेआम की टीम ने इंसानी लाश या इंसानी आज़ा खरीदने से पहले मुख्तलिफ मकातिबे फ़िक्र के उलमा से उनकी राय मालूम करने का फैसला किया कि अगर हम एक बदतरीन बुराई और बद से भी बदतरीन माफिया को बेनकाब करने के लिए खुद इंसानी लाश का सौदा करते हैं या फिर इंसानी दिल, दिमाग, फेफड़े और इंसानी हड्डियां खरीदते हैं तो क्या ये दुरुस्त होगा? क्योंकि इस खतरनाक और हसास तरीन प्रोग्राम पर काम करते हुए हम हर कदम फूंक फूंक कर रखना चाहते थे। सरेआम की टीम सबसे पहले अल्लामा डॉक्टर हसन रिजवी की रिहाइशगाह पर पहुंची और उनसे अपना मसला बयान किया। अल-आमालु बिन्नियात, अमल का दारोमदार नियत पर होता है। अगर आप इंसानी आज़ा की बेहुरमती करने के लिए खरीद रहे हैं उनको तो जाहिर है कि ये हराम है। लेकिन अगर आप इसलिए खरीद रहे हैं कि आप मालूम करें कि ये बेहुरमती कौन कर रहा है, कहाँ से ये बदमाशी हो रही है, तो भैया आप एक बुराई को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। जाहिर है कि यही तो नहीं मुनकर है, नहीं मुनकर यही है कि बुराई को रोकना। सरेआम की टीम ने यही सवाल मारूफ आलिम दीन मुफ्ती मोहम्मद नईम के सामने भी रखा कि अगर एक खौफनाक सच्चाई पर से पर्दा उठाने के लिए सरेआम की टीम इंसानी लाश या इंसानी आज़ा खरीदे तो क्या हम कोई गलत काम कर रहे होंगे? अगर कोई तरीका आपके पास नहीं है और आप उन लोगों को बेनकाब करना चाहते हैं तो फिर इसकी इजाज़त मिल जाएगी शरई एतबार से। लाशों की जगह खुद को या फिर अपने प्यारों को रख कर देखें, होश ठिकाने आ जाएंगे। आखिर इदारों का कोई ज़ाबिता, कोई कानून हुआ करता है। इस कदीम तरीन मेडिकल यूनिवर्सिटी के अहम तरीन डिपार्टमेंट का आखिर तो कोई रिकॉर्ड होता होगा। कितनी लाशें यहाँ लाई गईं और कितनी लाशों की बाकियात दफन की गईं, किन किन आज़ा को मेडिकल के तलबा की तालीम के लिए इस्तेमाल किया गया, ये सब चीज़ें किसी ज़ाबिते में तो आती होंगी। कोई क्लरिकल स्टाफ तो इन सब चीज़ों का रिकॉर्ड रखने का जिम्मेदार होगा। गाजर मूली का भी हिसाब रखा जाता है। ये तो इंसानी लाशें हैं और इन सब पर इस डिपार्टमेंट की एक हेड, आखिर उसकी भी तो कोई जिम्मेदारी होती है। और फिर इदारे का सरबराह वाइस चांसलर, जिन्हें पता है कि ये हो रहा है, जो लाशें बेचने वाले के बकौल जानते हैं कि लाशें बेचने पर पहले से भी एक इंक्वायरी चल रही है। इसके बावजूद भी वो शख्स सब इंसानी आज़ा लाकर हमें बेच देता है और वो भी काले इल्म के लिए। कोई अंधेर नगरी है, किसी जंगल का कानून है? फैसला आप खुद कीजिए कि क्या ये सब लोग भी इस इंसानियत सोज जुर्म में बराबर के शरीक हैं या नहीं। लाशों का ये सौदागर सरेआम की टीम को इंसान का दिल, इंसानी फेफड़ा, इंसानी गुर्दा और इंसानी दिमाग बेचने को तैयार हो गया था और अब सरेआम की टीम इंसान के अंदर के ये तमाम आज़ा इस शख्स से खरीदने लाहौर के म्यू अस्पताल जा रही थी। हमें म्यू अस्पताल के इहाते में ही बुलाया गया था और हमारा मंसूबा ये था कि एक गाड़ी में सरेआम की टीम मौजूद रहेगी और दूसरी गाड़ी में आसिफ कुरैशी उस शख्स को बुलाएंगे, क्योंकि गाड़ी से बाहर अगर वो माइक और कैमरा देखता तो आसानी वहां से भाग सकता था। गाड़ी में बैठते ही उस शख्स ने बड़े इत्मीनान से अपने साथ लाए हुए थैले से इंसान का दिल, इंसानी दिमाग, फेफड़े और दूसरे आज़ा निकालकर हमारे नुमाइंदे को दिखाना शुरू कर दिए। इस आदमी ने इंसानी आज़ा, इंसानी दिल, जिगर, गुर्दे, फेफड़े सब हमारे नुमाइंदों को हैंडओवर कर दिए और अब गाड़ी के अंदर चूँकि मौजूद है, आसानी से हम इसे पकड़ सकेंगे और मज़ीद बात करते हैं। हम चाहते थे कि इस घिनौने काम में मुलव्विस बाकी लोग भी बेनकाब हों, मगर उसका इसरार था कि वो अकेला ही ये काम कर रहा है। ये बता दें क्या क्या है इसके अंदर? इसमें विसरे हैं, विसरे हैं इंसानी हाँ, और
पास। दिल हाँ, वो पढ़ने के लिए आता है। पढ़ने के लिए क्या मतलब? पढ़ाई के लिए। यार आगे ले जाएं, वहाँ पर गाड़ी ले जाएं, मैं कोई बात और नहीं। ये इन्वॉल्व कौन कौन है इसमें? कोई भी नहीं है, मैंने यार आप आगे ले जाएं, सारे इकट्ठे मेरे पे। बहरहाल पुलिस के खौफ से बिल आखिर उसने अपने दूसरे साथी का पता भी बता दिया। मैं किसी ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਟੈਲੀਫੋਨ, ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰਾ ਦੇਗਾ, मेरी गल करा देगा उन्हें। भांजी बोलना ना। उससे राबिता ना हो सकने पर उसने हमें अपने साथ एनाटॉमी डिपार्टमेंट में उस शख्स तक ले जाने की पेशकश की, मगर इस शर्त के साथ कि हम कैमरा लेकर वहां नहीं जाएंगे। भांजी तुसी ना मेरे नाल चलो, मेरी गल मुंडा जिन मैं टेलीफोन का कंटेन पे चला गया, दूसरा मुंडा पे है। सो हमने मोबाइल कैमरे की मदद से इन सब मनाजिर को रिकॉर्ड किया। इस डिपार्टमेंट के इस मुलाजिम से हमारा तारुफ एक गाहक के तौर पर करवाया गया, सो वो बाआसानी हमारे साथ गाड़ी तक चलने पर रजामंद हो गया। लेकिन जैसे ही उसे सूरत हाल की संगीनी का एहसास हुआ, उसके पैरों के नीचे से जैसे जमीन निकल गई। भाईजान मेहरबानी। पुलिस या वाइस चांसलर ऑफिस। काफी देर कश्मकश में रहने के बाद हमने इन लोगों को किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के दफ्तर ले जाने का फैसला किया कि इदारे के सरबराह की हैसियत से वो खुद इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करें, मगर वो अपने दफ्तर में मौजूद नहीं थे। हमने हर तरह से अपनी जिम्मेदारी का एहसास किया। इन लोगों को पुलिस के पास ले जाने से पहले हम इन्हें एनाटॉमी डिपार्टमेंट की चेयरपर्सन डॉक्टर रफिया तफवीज के दफ्तर लेकर पहुंचे, लेकिन वो भी दफ्तर में तशरीफ फरमा नहीं थी। मगर उनके डिपार्टमेंट जाकर हम पर यह हैरत अंगेज इंकशाफ हुआ कि इस अहम तरीन डिपार्टमेंट को किस तरह से इंसानी लाशें बेचने वालों के रहमो करम पर छोड़ दिया गया था। मेडिकल के तलबा की तालीम के लिए इस डिपार्टमेंट में मौजूद इंसानी लाशों, इंसानी आज़ा और कीमती सामान का कोई पुरसाने हाल नहीं था। दोनों मुल्जिमान हमें बड़ी आसानी से डिपार्टमेंट के अंदर तक ले गए थे। हमें वो जगह दिखा रहे थे जहां तालिबे इल्म डायसेक्शन करते हैं, जहां अब भी एक मेज पर इंसानी लाश मौजूद थी। इंसानी आज़ा और इंसानी हड्डियां भी मुख्तलिफ अलमारियों में रखी थीं। ये सब मेडिकल की तालीम का लाजमी हिस्सा सही, लेकिन क्या उन लोगों को निशाने इबरत नहीं बना देना चाहिए जो इस डिपार्टमेंट की हिफाजत के जिम्मेदार हैं, जिन्हें इस डिपार्टमेंट को चलाने और इसका रिकॉर्ड रखने की बाकायदा तनख्वाह मिलती है, वो जो इस डिपार्टमेंट के नाम निहाद सरबराह हैं। ये कितनी अजीब बात है कि यहाँ कानूनी तौर पर लाई जाने वाली इंसानी लाशों में से आज़ा निकाल कर बाहर काले जादू तक के लिए गैर कानूनी तौर पर बेचे जाएं और ऊपर से नीचे तक किसी के कान पर भी जूं तक न रेंगे। सरेआम की टीम एक बार फिर वाइस चांसलर के दफ्तर पहुंची, जहां हमारी उनके किसी असिस्टेंट से बात करवाई गई। हमने उनसे सारा मामला बयान किया और फिर कुछ ही देर में हमें बताया गया कि वीसी साहब इस वक्त ऑपरेशन थिएटर में मौजूद हैं। थिएटर में है जी इस वक्त, तो वो बिजी हैं। ठीक है। 2-2.5 घंटे उनको भी लग जाएगा। लेकिन हम खुदा को हाजिर नाजिर जानकर आपको बताते हैं कि जिस वक्त इस घिनौने और भयानक मसले पर वीसी साहब हमसे मुसलसल बात करने से गुरेज कर रहे थे, उसी वक्त वो मुख्तलिफ रिपोर्टर से फोन करके हमारे बारे में मालूमात हासिल करने की कोशिश कर रहे थे। हमने बिल आखिर तंग आकर मुतल्लिका पुलिस को इत्तला की। तवील इंतजार के बाद हमें एक दरखास्त लिखने का कहा गया और फिर इंसानी हड्डियों और आज़ाद समेत मुल्जिमान को थाना गवाल मंडी मुंतकिल कर दिया गया। SHO साहब के रवैये और जाहो जलाल से हमें और हमारा नुमाइंदा भी इन मनाजिर को अपने मोबाइल से मुसलसल फिल्मा रहा था। मुख्तसर गुफ्तगू के बाद इस आदमी ने 5,000 रुपए के इवज एक इंसान की, जी हाँ, एक मरे हुए इंसान की हड्डियां हमारे नुमाइंदे के हवाले कर दी, और वो भी म्यू अस्पताल लाहौर के मरकजी चौराहे पर। इस बार भी ये शख्स कुछ मजीद इंसानी हड्डियां हमें बेचने पर आमादा हो गया। उसे इस बात से कोई सरोकार नहीं था कि हम कौन हैं और ये इंसानी हड्डियां क्यों खरीद रहे हैं। उसे तो बस मुंह मांगे दाम मिल रहे थे अपनी इंसानियत को बेचने के। इंसानी हड्डियां बेचने वाले इस इंसान ने हमारे नुमाइंदे को ये भी बताया कि हड्डियां और इंसानी आज़ा बेचने पर पहले से ही किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी लाहौर में एक इंक्वायरी चल रही है, यानी ये हड्डियां और इंसानी आज़ा पहली बार फरोख्त नहीं किए जा रहे थे, और उस नाम निहाद इंक्वायरी पर लानत भेजने के अलावा और क्या किया जा सकता है जिसके चलते हुए भी ये शख्स फिर से वही मकरूह काम कर रहा था।
हमारे नुमाइंदे ने आहिस्ता आहिस्ता बात आगे बढ़ाना शुरू की कि हमें दिल, दिमाग, इंसानी फेफड़े और इंसानी जिगर वगैरह भी चाहिए। वो तो बस जैसे तैयार बैठा था। उसने ऐसा तासुर दिया कि जैसे ये उसके बाएं हाथ का खेल हो। बस दाम बढ़ाने के लिए उसने इतना जरूर कहा कि इंसानी दिल और जिगर वगैरह के मुतल्लिका इंचार्ज को पैसे लगाने पड़ेंगे। दो चीज़ां होंगी, लंग होएगा और किडनी होएगी, स्प्लीन होएगी, हार्ट होएगा, ठीक है, ते ब्रेन होएगा। बेज़मीरी, बेहिसी और बेगैरती की इंतहा ये है कि ये शख्स जो हमें इंसानी हड्डियां बेचने आया था और अब जो हमारे साथ इंसानी दिल, दिमाग और फेफड़ों का सौदा कर रहा था, वो बार बार ये कह रहा था कि मैं मस्जिद के पास खड़ा हूँ, झूठ नहीं बोलता। इस पर तबसरे के लिए मेरे पास कोई मुहज्जब लफ्ज नहीं है, सो जाने दीजिए। इंसानी दिल, जिगर, दिमाग और फेफड़े हमारे नुमाइंदे को बेचने के लिए इस शख्स ने एडवांस रकम का मुतालबा किया और इस मकसद के लिए उसने हमें लाहौर के कदीमी रेलवे स्टेशन के सामने वाले पार्क में बुला लिया। बस यही वो मौका था जहां इस शख्स ने रूह को लर्जा देने वाले इंकशाफात किए। मुलाहिजा कीजिए कि ये किस रवानी से बता रहा है कि 1.5 लाख में इंसानी लाश मिल जाती है। इस शख्स ने यह भी बताया कि एक शख्स इसके साथ मिलकर ये काम करता था, लेकिन अब वो मर चुका है। और हैरत है कि ये बताते हुए भी उसे अपनी मौत याद नहीं थी। डेड बॉडी का बंदा डेड हो करता सी, वो मर गया है, वो भी थाने थ्रू करता सी। तमाम तर खौफ और एहतियात के बावजूद ये शख्स हमें इंसानी लाश खरीद कर देने के लिए तैयार था। वो बता रहा था कि किस तरह बाहर से लाश हमें हैंड ओवर की जा सकती है और कोई हमें लाश ले जाते हुए रोके ना, इसके लिए पुलिस का लेटर हेड भी तैयार किया जा सकता है। ਉਹਦਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਉਹਦਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕੋ ਥਾਣੇ ਚੋਂ ਹੀ ਡੈਡ ਬਾਡੀ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਹਰੋਂ ਡੈਡ ਹਾਊਸ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਅੱਛਾ, ਡੈਡ ਹਾਊਸ ਬਾਡੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਉਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਜਹਾਜ਼ ਫੋਟ ਹੋਵੇ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਹਨੇ ਰਾਬਤਾ ਕਰੇ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਵੇ, ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਆਪਣੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਭੇਜੋ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਉੱਥੋਂ ਪੈਡ ਦੇ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਪੈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈਟਰ पैड बनवाने के इजाजतनामे का। लाश के बाद वो वापस हड्डियों पर आया और उसने हमारे नुमाइंदे को बताया कि उसने हमारे लिए एक इंसानी खोपड़ी का एहतमाम भी कर रखा है, जिसे तेजाब में डालने के बाद ये खोपड़ी चमकती हुई हालत में वो हमें देगा। खोपड़ी का कीता जी? खोपड़ी असबल मैडम ये बदले ते दो दिन चढ़ा दी गल्लां पईयां ने, मैडम गल्लां चढ़ाएगी, ये बाजी का रीजन भी शुरू नहीं होया। पता है जो साडा रीजन शुरू होना वो दूसरे काजा रीजन शुरू होना है। और अब प्रोग्राम का सबसे बड़ा झटका। इंसानी दिल थोड़े टमाटर वाला है। ये बता दें क्या क्या है इसके अंदर? दिल, हाँ वो पढ़ने के लिए आता है। लाशें बिक रही हैं सर पंजाब में, आपसे हमने बात करनी सर। सर रिस्पॉन्स आपका कोई बंदा नहीं दे रहा है सर। और अब प्रोग्राम का सबसे बड़ा झटका। अब तक तो हमें इंसानी हड्डियां और आज़ा बेचने वाले ने हमारी शनाख्त की जहमत ही गवारा नहीं की थी और ना ही ये जानने में उसे दिलचस्पी थी कि हम उससे ये सब क्यों खरीद रहे हैं। लेकिन अब हमारे नुमाइंदे आसिफ कुरैशी उसे बता रहे थे कि एक शख्स को काले इल्म के लिए इंसानी दिल चाहिए और उसका रद्द अमल सिर्फ ये था कि बंदा एतमाद वाला है ना। बंदा जादूगर एतमाद वाला है। हाँ, एतमाद वाला है। बंदा पैसे बड़े लेगा जी, मैं तो जादू वाले बंदे को बड़े पैसे देता जी, मैं तो सीधा साफ जादू वाले बंदे को बड़े पैसे देता जी, कम से कम 50,000 60,000 रुपये देता। और फिर साथ ही इनडायरेक्टली उसने अपने रेट बढ़ाने की कोशिश की और कहने लगा कि मैं जिससे दिल लूंगा वो काले इल्म के लिए जरा महंगा दिल बेचता है, 50-50, 60-60 हजार का। काले दिल और काले खून वाला ये शख्स हमें काले इल्म के लिए इंसानी दिल बेचने पर भी तैयार हो गया था। हालांकि वो बाकी चीजें जो हमें बेच चुका था या बेचने वाला था वो उनके बारे में भी नहीं जानता था कि हम उनका क्या करेंगे। मगर हमने ये सवाल उससे सिर्फ इसलिए पूछा कि देखने वालों को अंदाजा हो सके कि ये आदमी किसी अच्छे काम या डॉक्टरी की तालीम के लिए ये आज़ा नहीं बेच रहा था। उसकी नीयत सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाने की थी। क्या आप और मैं कभी चाहेंगे कि हमारी या हमारे प्यारों की हड्डियां या दिल, दिमाग कोई काले जादू के लिए बेचता फिरे? काले इल्म के लिए इंसानी दिल बेचने का वादा
किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के उन तमाम जिम्मेदारान के मुंह पर तमाचा है जो हमारे सामने तो आकर बात करने को तैयार नहीं, मगर इधर उधर मुख्तलिफ रिपोर्टर्स से कहते फिरते हैं कि ये तमाम चीजें तो मामूल की बात है। अगर ये मामूल की बात है तो फिर खाकम बदहन इन एक ये चाहिए, इसकी हड्डी गुले की हड्डी चाहिए। अच्छा, और क्या चाहिए? और एक ये टांग की हड्डी चाहिए। इस प्रोग्राम की तारीख के एक अजीब चौराहे और अजीब मोड़ पर हम खड़े हैं। मेरे बिल्कुल सामने इंसानी हड्डियां मौजूद हैं। मेरे सामने एक लिफाफे के अंदर इंसान का दिल और उसके दिमाग के मुख्तलिफ हिस्से मौजूद हैं। लाशें बिकनी हैं सर पंजाब में। आपसे हमने बात करनी सर। सर रिस्पांस आपका कोई बंदा नहीं दे रहा है सर। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सरेआम और मैं हूं इकरार। वतन अजीज में इंसानी लाशों की तौहीन, मरने के बाद भी इंसानियत की बेहुरमती अब कोई नया वाकया नहीं रही, लेकिन आज सरेआम के इस सबसे हैबतनाक एपिसोड में हम आपको बताने जा रहे हैं कि किस तरह से शहर लाहौर में पाकिस्तान के दिल में इंसानी लाशों की सरेआम खरीदो फरोख्त जारी है। और आज के इस एपिसोड में इंसानी लाश खरीदने से लेकर सरेआम की टीम ने इंसानी दिल, गुर्दा, फेफड़ा और दिमाग भी खरीदा है। आज का ये प्रोग्राम दिल पर हाथ रखकर देखिएगा। मौत बरहक है और मरना हर एक को है, आपको भी और मुझे भी। लेकिन एक लम्हे के लिए सोचिए और महसूस कीजिए कि मरने के बाद आपकी लाश को बेचा जा रहा हो, काले इल्म के लिए या फिर किसी भी और मकसद के लिए आपका दिल, दिमाग, जिगर, फेफड़े और आपकी हड्डियां मरने के बाद सरे बाजार बेची जा रही हों, तो अपनी जिंदगी में ये सब सोचकर आपको कैसा लगेगा? खुदा ना खास्ता सूरत हाल और भी हैबतनाक हो सकती है, क्योंकि अपनी तौहीन और बेहुरमती तो शायद इंसान बर्दाश्त कर ले, लेकिन आपके प्यारे माँ बाप, बहन भाई, औलाद जो इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं, खाकम बदहन उनकी लाशों को बेचा जाए, उनके दिल, गुर्दे और दिमाग मरने के बाद निकाल कर काला जादू करने वालों को फरोख्त कर दिए जाएं, तो फिर दिल थाम कर सुनिए, इस मुल्क में ऐसा हो रहा है। इंसानी लाशें, इंसानी दिल, इंसान का दिमाग, इंसानी फेफड़े और गुर्दे, इंसान की हड्डियां, सब कुछ बेचा जा रहा है, और वो भी किसी ऐसी वैसी जगह पर नहीं, पाकिस्तान की सबसे कदीम मेडिकल की दरसगाह किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी लाहौर में, और वो भी सरेआम। और आज के इस प्रोग्राम में सरेआम की टीम किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी लाहौर के इस भयानक माफिया को बेनकाब करने के लिए इंसान की लाश, इंसानी दिल, दिमाग, फेफड़े और इंसानी हड्डियां खरीदने की कोशिश करेगी, और बदकिस्मती से ये कोशिश कामयाब हो जाएगी। लेकिन चलते फिरते जनाजों वाले इस मुआशरे की असल बदकिस्मती इस माफिया के बेनकाब होने के बाद सामने आएगी। सबसे पहले कराची के मुख्तलिफ अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजेस में अपनी कोशिशों की नाकामी के बाद हमने यहाँ के कब्रिस्तानों का रुख किया, और बहुत जल्द सरेआम की टीम की रसाई ऐसे शख्स तक हो गई जो हमें इंसानी हड्डियों की फरोख्त पर आमादा था। तो मुझे ज़रा बताएं, मुझे एक ये चाहिए, इसकी हड्डी गुले की हड्डी चाहिए। अच्छा, और क्या चाहिए? और एक ये टांग की हड्डी चाहिए। ठीक, मिल जाएगी। कुछ उंगलियां चाहिए। मिल जाएगी। इस शख्स ने सरेआम की टीम के नुमाइंदे को कम से कम 2 बार गलत जगह पर बुलाकर मिलने का वक्त और मकाम आखिरी वक्त पर तब्दील किया, और फिर कुछ एतमाद हासिल होने के बाद बिल आखिर वो सरेआम के नुमाइंदे से मुलाकात के लिए तैयार हुआ। ये इंसान, शायद इसे इंसान कहना भी गलत है, चंद हजार रुपए के एवज
इंसानी हड्डियों की फरोख्त पर रजामंद हो गया था। लेकिन ठहरिए, इंसानी हड्डियों की फरोख्त की ये डील अपनी हौलनाकी और खौफनाकी के एतबार से कुछ भी नहीं है, क्योंकि बस कुछ ही देर बाद हम आपको पाकिस्तान के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तारीख का सबसे भयानक सच दिखाने जा रहे हैं कि किस तरह से एशिया की कदीम तरीन किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी लाहौर में लाशों के सौदे किए जा रहे हैं और किस तरह सरेआम की टीम ने इंसानी दिल, इंसानी दिमाग, फेफड़े और इंसानी हड्डियां सरेआम खरीदी। और ये भी कि खादिम आला पंजाब के लिए अपने सूबे में लाशों का बिकना शायद कोई हैसियत नहीं रखता। रूह को लर्जा देने वाले इस इंकशाफ से पहले हम आपको निस्बतन एक हल्की डोज दे रहे हैं ताकि आपका दिल और दिमाग इस कड़वे और हौलनाक सच का सामना करने के लिए तैयार हो सके। सरेआम की टीम को इंसानी हड्डियां बेचने पर आमादगी का इजहार करने वाले शख्स ने कुछ ही दिन बाद हमारे नुमाइंदे को एक मकामी कब्रिस्तान में बुलाया। कब्रिस्तान का नाम बताने से हम इसलिए गुरेज कर रहे हैं कि वहां पर दफन मरहूमीन के प्यारों की दिल आजारी ना हो, लेकिन अगर सरकारी सतह पर किसी भी तरह की तहकीकात होती हैं तो सरेआम की टीम हर तरह की मालूमात अफशा करने को तैयार है। सरेआम की टीम बताए हुए वक्त पर मुकर्ररा बशर्ते कि आपकी नीयत उन लोगों को बेनकाब करना है। आपका ये इक़दाम यकीनन काबिल तहसीन है कि हुकूमत और रियासत के उन हुक्काम बाला को शऊर देने के लिए या अखबार व मालूमात पहुँचाने के लिए अमर बिल मारूफ व नहील मुनकर का जो ये काम कर रहे हैं, यकीनन ये काम हर सूरत में काबिल सताइश और काबिल तारीफ है। इंसानी लाशें बेचने वाले माफिया को बेनकाब करने के लिए सरेआम की टीम को एक से ज्यादा बार इंसानी आज़ा खरीदना थे। इन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जाना था और इसके अलावा भी इस मामले में संगीन तरीन कानूनी पेचीदगियां मौजूद थीं, क्योंकि मिशन मुकम्मल होने से पहले पकड़े जाने की सूरत में हम या हमारी टीम का मुतल्लिका रुकन भी ज़ेरे अताब आ सकता था। सो हमने कानूनी राय भी हासिल करने का फैसला किया और ये सब तैयारियां थीं मुल्की तारीख के इस अजीबो गरीब, हौलनाक और खौफनाक स्कैंडल को सरेआम लाने की। हमने एडवोकेट साहब से ये भी पूछा कि लाशें बेचने वालों को सामने लाने के लिए अगर लाशें खरीदना पड़े तो कानून क्या कहता है। जी बिल्कुल, कानून इसको बिल्कुल कवर करता है और पाकिस्तान के ज़ाब्ता फौजदारी में, पाकिस्तान पिनल कोड में बाकायदा इस जुर्म का जिक्र मौजूद है। ये बुनियादी तौर पे लाश की, इंसानी लाश की बेहुरमती में आता है और इसके लिए जो है वो 1 साल तक कैद की सज़ा है और जुर्माना भी है और दोनों भी हो सकते हैं। मजहबी और कानूनी आरा से हौसला अफजाई के बाद हम इस हैबतनाक सच्चाई की खोज में लाहौर पहुंचे। यहाँ किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में इंसानी लाशों की फरोख्त की मुसद्दिका इत्तलात हमारे पास मौजूद थी। दरअसल मेडिकल के स्टूडेंट्स की तालीम के लिए इंसानी आज़ा जरूरी तस्वुर किए जाते हैं और इन पर प्रैक्टिकल्स के बाद ही ये तालिब इल्म अमली जिंदगी में डॉक्टर बनकर जीते जागते इंसानों का इलाज करते हैं। यूं तो आजकल मेडिकल की तालीम के लिए इंसानी जिस्म से बिल्कुल मुशाबे और मिलती जुलती डमीज भी दस्तयाब हैं और पाकिस्तान के कुछ मेडिकल कॉलेजेस में इन पर तालीम दी भी जा रही है, लेकिन फिर भी सीनियर डॉक्टर्स इसे असल इंसानी लाश का नेमुल बदल नहीं मानते। सो डॉक्टरी की मुकम्मल तालीम के लिए इंसानी लाश और आज़ा अब भी नागुज़ीर हैं। मुस्तकबिल के डॉक्टरों की तालीम के लिए लाशों के हुसूल के आम तौर पर 2 तरीके हुआ करते हैं। एक ये कि कोई अपना जिस्म इंसानियत की इस खिदमत के लिए अतिया करके इस दुनिया से रुखसत हो, या फिर वो लावारिस लाशें जिन्हें एक मुकर्ररा मुद्दत गुजर जाने के बाद भी मुर्दा खानों से लेने कोई नहीं आता। ऐसी लाशें भी मेडिकल कॉलेजेस के एनाटॉमी डिपार्टमेंट के हवाले कर दी जाती हैं, जो खालिसतन मेडिकल स्टूडेंट्स और प्रैक्टिकल के लिए होती हैं और पढ़ाई मुकम्मल होने के बाद इन लाशों की बाकियात को दफन कर दिया जाता है। लेकिन किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी लाहौर जैसी पाकिस्तान की इस बड़ी दरसगाह का एनाटॉमी डिपार्टमेंट ऐसी लाशों और इंसानी आज़ा की फरोख्त की मंडी बना हुआ है।
इस डिपार्टमेंट के कारिंदे काले इल्म के लिए बाआसानी इंसानी दिल बेचने पर भी राजी हो जाते हैं और इंसानी लाश की फरोख्त पर भी। ज्यादा पैसे ले रहे हैं, मैं उसको ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਡੈਡ ਬਾਡੀ ਲੱਭ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋ ਦੇਣੀ ਦੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਨਾ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਹਰ ਡੈਡ ਬਾਡੀਆਂ ਇੰਨੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀਆਂ, 1.5-2 ਲੱਖ से डेड बाडियां मांगने, आज बंदा एक आया था। और सरेआम की टीम के पास इस दिल दहला देने वाली सच्चाई की एक रिकॉर्डिंग मौजूद है। प्रोग्राम देखते जाइए मगर दिल थाम कर। किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी लाहौर के तलबा की तालीम के हक पर डाका डालते हुए यहाँ लाशें और इंसानी आज़ा इस तरह आलू प्याज की तरह सरेआम बेचे जा रहे हैं कि इन्हें बेचने वालों का नंबर हासिल करना कोई मुश्किल काम नहीं था। प्रोग्राम सरेआम के लिए आसिफ कुरैशी ने लाशें बेचने वाले इंसान से राबिता किया। खुदा मालूम ऐसे शख्स को इंसान कहा भी जा सकता है या नहीं, जो आने वाले वक्त में काले जादू के लिए हमें इंसानी दिल बेचने वाला था। वो करता है कुछ जादू ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਜੇ ਅਗਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨੰਬਰ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਦਿਲ ਇਨਸਾਨੀ ਦਿਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤਮਾਤ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਜਾਦੂਗਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤਮਾਤ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਤਮਾਤ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਪੈਸੇ ਬੜੇ ਲੈਗਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਦੂ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਸਾਫ਼ ਦੱਸਦਾ, ਜਾਦੂ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ को बड़े पैसे लेता है, कम से कम 50,000 60,000 रुपये लेगा। कोई इंसान जिसके अपने सीने में भी एक दिल धड़कता हो, वो चंद हजार रुपए के एवज किसी दूसरे इंसान का दिल काले इल्म के लिए कैसे बेच सकता है? ये कहना और सुनना आसान है, लेकिन जरा एक लम्हे को सोचिए तो कि ये इंसानियत का कितना घटिया तरीन दर्जा है। और क्या हम सब बहैसियत कौम इस गुनाहे कबीरा से बरियो जिम्मा हो सकते हैं? लेकिन जहां जिंदा सांस लेते और जीते जागते इंसानों की कोई औकात ना हो, उस मुआशरे में कोई मुर्दों को क्या इज्जत और क्या तहफ़्फ़ुज़ देगा? हमारे नुमाइंदे से पहले ही टेलीफोनिक राबिते पर वो शख्स हमें इंसानी हड्डियां बेचने को तैयार हो गया, क्योंकि हमने सिर्फ हड्डियों का ही मुतालबा किया था। उसने ये जानने की जहमत भी नहीं की कि हमें ये हड्डियां क्यों और किस मकसद के लिए चाहिए। अगले ही रोज उसने हमें हड्डियां फराहम करने के लिए लाहौर के मियो अस्पताल बुला लिया। हाँ जी हाँ जी ठीक। सोचने की बात यह है कि ये किस तरह मुमकिन है कि वो यूं सरेआम एशिया के इस बड़े अस्पताल में इंसानी हड्डियां बगैर मुतल्लिका हुकाम की आशीर्वाद के बेचता फिरे। सरेआम की टीम दूर गाड़ी से ये तमाम मनाजिर रिकॉर्ड कर रही थी